So it's a Facebook and here. Yeah. And then we put it on YouTube later and then send a mail to the participants. Because many of them come back and ask for recording. Oh, is it? Yeah, yeah. Yeah. I guess that's some of them may have missed some parts of it. Yeah. They would want to see, or sometimes I think just want to rehear or Yeah. What you find interesting, because here of course it goes very quickly. Yeah, yeah. खत्म हो जाता है धीमे फटाफट. So I should show the logo of the ISPP on my T-shirt. No? You should. Can move. In fact, we should think of giving to the Hindi participants also when they come. Yes, no, we do have a welcome kit. Oh, great. That goes to every student. Right. So it includes a T-shirt and many other things. I don't want to reveal it now. Right. Right. So we can start in a minute. People are still joining. Yeah. So I saw your article on Air India. Yeah. Yeah. Yeah, I mean, that is. Have you written that before, or you wrote it after it? After it happened. So I've been following the deal, and my friends were working on the deal. So I mean, we were in discussion, but I somehow felt that they should have taken part of the real estate and made it a part of the sale, rather than relying on their own expertise, because that could have really fetched good money. And in fact, I mean, the government is also right. They want to keep the real estate to themselves. But then again, they had tried to bid last year and the bidding was not successful. हाँ, वो तो नहीं था, सही नहीं हुआ, तो मुझे यही डर लग रहा है कि वो कर भी पाएंगे कि नहीं. So my only point is that then get private expertise in bidding and give it to private players to sort of क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, bidding भी नहीं हो रही. अभी जो सेल हो गया टाटा ग्रुप को, the land is included in that sale, no? No. So land, no. The real estate has gone to AIHL, which is the SPV. Okay. So उन्होंने 12,000 plus crores दिया, खरीदा debt and upfront payment किया बाकी का out of 6,000 something. Okay. So the good part of Air India deal was that lenders did not get a haircut. I mean, that is something good. Yeah. And on an average, जो IBC में recovery होती है उससे ज़्यादा हुई. I mean, 25% of debt चला गया, despite not premium assets still remaining with the government. So it was a good deal. Yeah. As I say, good deal for government. No, we don't know. It's a good deal for Tatas. I know. Oh, yes. Operational challenges will be there. Yeah. Huge. Yeah. So, yeah. So should we start? I think we have 16 attendees. And बहुत स्वागत है आप सभी का आज. मुझे पता है कि आज की शनिवार कोई आम शनिवार नहीं है, दशहरे के बाद की शनिवार है और कल सबने दशहरा मनाया होगा और थके होंगे. उसके बावजूद आप आए हैं, जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थ जे शाह, को फाउंडर एंड डायरेक्टर इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी. आपको मैं बता देना चाहूंगी कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो है वह देश का सबसे पहला डिजाइन थिंकिंग पब्लिक पॉलिसी स्कूल है और 3 साल के दौरान में इसने भारत में पब्लिक पॉलिसी संस्थानों में एक प्रमुख स्थान इसने बना लिया है. ISPP को परिचय की आवश्यकता नहीं है. तब भी आपको बता देना चाहूंगी कि ISPP बहुत चीजों में लीडरशिप लिया है, जैसे डिजाइन थिंकिंग हो गया, प्रैक्टिकम्स हो गए. और हमारे संस्था का एक मेन उद्देश्य है कि जो पब्लिक पॉलिसी का एजुकेशन है उसका लोकतांत्रिकरण हो पाए, मतलब आम जनता इस कोर्स से जुड़े. और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है लोक नीति. ये जो सार्वजनिक नीति शिक्षा देगा हिंदी भाषियों को. इसका माध्यम जो है इसका वो इंग्लिश में है
और इसी कोर्स पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर पार्थ जे शाह। और पार्थ का 3 दशक से भी ज्यादा अनुभव रहा है पब्लिक पॉलिसी में। इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआती अपने की पढ़ाने में ही प्रोफेसर थे अमेरिका में इकोनॉमिक्स में। और पार्थ एक लाइव एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है आप सभी के सामने कि जिन्होंने 12वीं क्लास तक अपनी आई थिंक हिंदी मीडियम में गुजराती मीडियम में पार्थ ने शिक्षा ली और उसके बाद वह अमेरिका पहुंचे और वहां पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में वह इंग्लिश में लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भाषा कभी भी आपके करियर में कोई बाधक नहीं हो सकती यदि आपका कॉन्सेप्ट्स है और आपको ज्ञान है। और इसी के साथ पार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीति। और आप भी है एसोसिएट डीन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सो आपका भी इंट्रोडक्शन करना होगा। सो मैं सोच रहा था कि जो यहाँ जो लोग आए हुए हैं आज वो लोग हैं जिसको एक कोर्स में इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि कोर्स में क्या होने वाला है, वो शायद ज्वाइन करे या ना करे। तो मैं उनसे पहले पूछना चाहूँगा एंड मे बी वी कैन कीप इट लिटिल मोर ओपन डिस्कशन, राइट। हमें भी आपसे सीखना है, जानना है आपसे कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है इस कोर्स के बारे में। नहीं कि जस्ट इस कोर्स के बारे में, आई थिंक ज़्यादातर ऑल्सो पब्लिक पॉलिसी के बारे में आपका क्या इंटरेस्ट उसके अंदर रहा है, तो हमें भी थोड़ी समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अभी जो हमने किया हुआ है, जो नीति आपको बताएगी थोड़े वक्त में, वो हमारा सिर्फ पहला सोच है कि इस तरह से हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं जो हम मानते हैं कि काफ़ी अच्छा रहेगा हिंदी भाषी के लिए। लेकिन we also want to hear your feedback. Right? So before we start and talk about the course, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपका कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस रहा होगा पब्लिक पॉलिसी के साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस कोई रहा होगा आपका, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या पॉजिटिव था, नेगेटिव था, क्या सीखा आपने उसके अंदर वो एक्सपीरियंस के बाद। तो आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। मे बी ये भी कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं उसके बारे में, हिंदी या इंग्लिश में, जिस भाषा में आपको लिखना अच्छा लग रहा है आप लिख सकते हैं, राइट। अगर बाद में पॉसिबल होगा तो हम 1-2 लोगों को भी पूछेंगे वर्बली उनका क्या अनुभव रहा है पब्लिक पॉलिसी के साथ। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद पब्लिक पॉलिसी, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड व्हाट हैज बीन योर लर्निंग from that experience. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यदि आप बोलना चाहें तो अपनी रेज हैंड का आइकॉन है यहाँ पे, अब उसमें भी आप कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। तो बताइए, अपना शेयर कीजिए अनुभव, अच्छा या बुरा जो भी हो। सबसे पहले पार्थ आए हैं हमारे पास विनय जी, और आई थिंक विनय जी ने हाथ उठाया है, तो विनय जी आप बोल सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी। हाँ, तो वैसे मेरी बात आपसे भी बात हो चुकी है और मैं पिछले वेबिनार में भी था। और तो मेरा मेन इशू यही रहा है कि इंडिया जैसे जैसे बदल रहा है ना, कि अगर शायद मुझे लगता है आने वाले 20 सालों में हम इंडिया को शायद बहुत बदलता हुआ देखेंगे। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे तकनीक भी आ रही है तो उसका भी रोल बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग में बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग हैं वही डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, क्योंकि बदल रहा है सिस्टम, देश बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि लोकतांत्रिकरण होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी का, तो लोग भी आएंगे और मुझे लगता है आना चाहिए लोगों को जो कि इस देश का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं। मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है या जो जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ वो है शिक्षा का क्षेत्र। तो करीबन 20% हमारे देश की जनता साक्षर है और मेरा यही विचार है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और इस समय तो मैं एक स्टार्टअप में ही काम कर रहा हूँ जो शिक्षा से रिलेटेड है। तो कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके
उन लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि होता ये है कि अब जैसे देखिए ना, डॉक्टर्स भी अगर गवर्नमेंट भेजना भी चाहती है लोगों को, तो अलग परेशानियां रहती है, डॉक्टर्स नहीं सर्व करना चाहते या करना चाहते हैं, किन्हीं वजह से नहीं कर पाते। उसी तरह टीचर्स के साथ भी है कि स्कूल्स तो गवर्नमेंट ने खोल दिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत या दूसरी प्रोग्राम्स के तहत, बट कई जगह पे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शहरों में नहीं है तो गाँव में तो अब भूल ही जाइए। तो क्या तकनीक का इस्तेमाल करके क्या बेहतरीन शिक्षा हम लोगों को दे सकते हैं, और ऐसी शिक्षा जो आज के समय के अनुरूप, क्योंकि नौकरियों का भी एक सवाल आ रहा है कि सरकारी नौकरियां लोगों को कितनी दी जा सकती है। तो एक मेरा तो लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी कह लीजिए, उससे यही मेरा एक जुड़ाव रहा है। मैंने कहीं काम नहीं किया है, बट क्योंकि मेरा हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहा है इन सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, या इस देश के मुद्दों में कह लीजिए, तो वही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। और जब मैं कोर्सेज ढूंढ रहा था तो मुझे, क्योंकि मैं आईएसपीपी में से परिचित था, तो मैं देख रहा था कि क्या कोई ऐसा कॉलेज है जो कुछ कोर्स ऑफर कर रहा है, तो मुझे दिखा, तो इसलिए मैं आया यहाँ और जानने की मुझे उत्सुकता हुई। और आपसे भी मेरी बात हो चुकी है एक बार, तो मुझे अच्छा बड़ा लगा। बड़ा धन्यवाद विनय जी। इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट यू आर सो एंगेज विद पब्लिक पॉलिसी। और भी कुछ जवाब आए हुए हैं। राहुल गुप्ता ने जवाब लिखा हुआ है, अक्षय ने जवाब लिखा हुआ है वहाँ पे, किसी का नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। अक्षय जी लिख रहे हैं कि अच्छा, पब्लिक पॉलिसी काफी साल से वो पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। सो पॉलिसी के आइडियाज के बारे में तो एक बात है कि क्या आप सोचते हैं उसके बारे में, क्या होना चाहिए देश के अंदर, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल था कि आपने अपनी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस किया होगा, आप कहीं कहीं गए हैं पॉलिसी के, पब्लिक पॉलिसी जहाँ इन्वॉल्व होती है राइट गवर्नमेंट के साथ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? पार्थ, एक श्रोता है, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, सुजीत राज जी। जी सुजीत राज जी, बताया जाए। आप चाहें तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं माइक में। एक हेलो हाँ बोलिए। हेलो, is my voice audible, sir? यस। Sir, basically I'm from South India. I'm comfortable in English. Is it okay, everybody? Certainly. दोनों लैंग्वेज ठीक है यहाँ पे, आप जिसमें बोलना चाहे। Okay, okay. Sir, public policy, just I'm from a science background, researcher, and I feel my experience with public policy, wherever I interacted with the government system, it's a very slow pace. It's going a very slow pace. Just example, if you go to a hospital, there are so many ways a government hospital. There are so many areas, gaps are there where you can change the system, but we are continuing the same old pathetic situation, same old city strategies. We can use vending, which there are so many areas we can involve in. Another example is next 2050, the things are changing in a very, very fast pace. Moment will be there, and we certainly need better public policies. The same old public policies, I think that doesn't make sense. We should have a rule book, or we should have a policy book. Everybody should have policy. You follow this policy, that's enough. You will get the rule. This is the object. You will reach that position. Certainly, public policy should be really improved. It should be fast track. Should be involved in the country. That's my opinion. थैंक यू सुजीत राज जी। रोहन, आप लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? एंड मे बी दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस बिफोर वी डिस्कस ऑन दिस। जी रोहन। धन्यवाद मैडम। तो मैं भारत सरकार की एक योजना है, अभियान है, उन्नत भारत अभियान, तो उसके अंतर्गत मैंने सर्वेक्षण किया है मेरे महाविद्यालय के साथ। तो ये भी उनकी एक नीति है, दिस इज अ पब्लिक पॉलिसी विच दे केम अप विद, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों से बात करें, उन्होंने किन किन योजनाओं का लाभ उठाया है,
उन्हें क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें उनसे हमने बात की और फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और महाराष्ट्र सरकार को हमने वो रिपोर्ट दी। तो ये जो और मेरा जो अनुभव रहा है एज दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है उनकी कि आप लोगों तक जा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो और फिर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और मतलब आप पॉलिसी बना रहे हो फॉर पॉलिसी मेकिंग। सो उन्नत भारत अभियान in itself is a good policy. It's and as Sujit Raj already said, it is very slow. I have mooted the idea in my own college and in a certain government in the uh, state board of Maharashtra, saying that commerce, we have a subject OCM, Organization of Commerce and Management. I said this should change. It should be Organization of Business and Management. Why? Because commerce is a part of business as a concept, and this is taking forever to even be discussed because the common man thinks commerce is a wider part, business as a concept is a uh, a narrower part. But since I'm a student of this subject, I've learned it. So it does go slow, but it's fine. I've also raised certain issues regarding my own family's voters ID, और वहाँ पे उनसे उनकी एक संकेत स्थल है NVSP करके, wherein you can also lodge your grievances. There I have received, my interaction with the government officials through that portal has been quite good. They've addressed my concerns quite adequately, probably because there's a rule which says that within these many days you have to address the citizens' grievances. So it's mixed, but I feel it's changing and it's becoming better. Thanks for giving me this opportunity to speak. थैंक यू रोहन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपका अनुभव पॉजिटिव रहा है। आप देख रहे हैं कि किसी का एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव नहीं है, किसी का पॉजिटिव है। आई थिंक हमारी मकसद ये रहेगी एज ए सिटीजन, ऑल्सो एज ISPP एंड पर्टिकुलरली जो लोक नीति कोर्स हम करने जा रहे हैं, कि सभी का एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो। राइट, हम सब चाहते हैं कि जो भी सिटीजन पॉलिसी के sort of टच करता है, उसके अनुआ में आता है, तो उनको भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे, ताकि उनको भी लगे कि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से सरकार हमारी सरकार है, हमारे लिए कर रही है और हमें उसका फायदा भी मिल रहा है। नीति, would you want to sort of take them through the? जी। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाबों का। और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हाथ उठाए हुए हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, हम उस पर वापस आएंगे। पर आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगी कि लोक नीति क्या है और हमारी क्या मंशा है, हम क्या करना चाहते हैं इस कोर्स के माध्यम से। आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ लोग बता रहे थे कि कोर्स कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां सरकार की कितनी अच्छी हैं, कुछ नहीं हैं। तो इस कोर्स का उद्देश्य है कि आप नीति के पीछे जो साइंस होता है आप उसको समझें। क्यों कुछ नीति का को जब लागू करते हैं तो वह बिना किसी हिकअप के, बिना किसी संकोच के वो अच्छे से जमीनी स्तर पे लागू हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता। तो इसी के साथ, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कोर्स डिजाइन किया है। कोर्स का नाम है लोक नीति। यह कोर्स 4 महीने का है, पार्ट टाइम कोर्स है और पॉलिसी, डेटा और बिहेवियर चेंज पे फोकस करता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स का उद्देश्य है कि भारत में नीति शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कैसे हो। देखिए, इंडिया में 10% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इनफैक्ट CMI का एक सर्वे हुआ था जिसमें निकला था कि 6%, अराउंड 6% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। और उन 6% में भी कुछ प्रतिशत लोग हैं जो लोक नीति से जुड़े हुए हैं। और अगर हम नए भारत की कल्पना करते हैं तो नया भारत का कभी भी वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा जब तक सभी लोग लोक नीति में
भागीदारी न ले। तो इसी उद्देश्य के साथ यह शिक्षा का हमने गठन किया है और इस शिक्षा द्वारा स्टेट कैपेसिटी को भी हमें विश्वास है कि स्टेट कैपेसिटी बिल्ड होगी, स्थानीय स्तर पर राज्य की क्षमता निर्माण में मदद प्रदान होगा। और सबसे मुख्य बात है कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषी जो है या नॉन इंग्लिश स्पीकर, आई मीन दैट बी बेटर वे टू फ्रेज देम, वो अपने आप को उनमें एक हीन भावना सी आ जाती है कि भाई हम कैसे भाग ले, हम कैसे डिबेट में भाग ले, हमें वो भाषा के बंधन में बन जाते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से हमारी यही चेष्टा होगी कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, हिंदी भाषी हैं, वह बोल चाल की भाषा में इस कोर्स को हम पढ़ाएं, उनको ज्ञान अर्जित हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ तकनीकी जो एजुकेशन प्राप्त होगा हमारे यहाँ, उसके साथ यह पॉलिसी डिस्कोर्स में भाग ले पाए। और इस कोर्स के द्वारा आप बहुत चीजें हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो बताऊं कि आपको जो लोकल इश्यूज है, लोकल प्रॉब्लम्स है, वो आप समझ पाएंगे। हमारी यही चेष्टा होगी कि हम आपको जो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से आपकी जो आपके इलाके में या आपके डोमेन में जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें आप इश्यूज समझ पाए। और डेटा पे और M&E पे हमारा काफी फोकस है। तो डेटा को एकत्रित करना, उसको साझा करना, उसको एनालिसिस करना, उसका कैसे उपयोग हो नीति गठन में, ये सब चीज को हम ये सभी चीज आप सीखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट आजकल काफी एक पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है नज या व्यवहार परिवर्तन का। जब हम बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन जब पोलियो टीका लगाने के लिए सब लोगों से अनुरोध करते हैं, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब झाड़ू उठाते हैं, तो वह एक क्रिया मात्र नहीं है, उसके पीछे काफी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह का नज है कि लोग उनको देख करके उनके व्यवहार का अनुकूलन करें। तो इसी सोच के साथ आजकल बहुत ही तरीके की टूल्स आई हैं, नज उनमें से एक टूल है, पर बिहेवियरल साइंस का काफी उपयोग हो रहा है नीति के गठन में। तो उस तरह का आपको जानकारी मिलेगी और इस कोर्स के द्वारा आप आइडेंटिफाइबल स्किल्स लेके जा पाएंगे। यह कोर्स थ्योरी लाइट है और स्किल हैवी है, और मुझे बताने में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपको जो काफी जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के जाने माने एक्सपर्ट्स, इंडिया के जानी मानी संस्थाएं जो इन विषयों पे काम कर रही हैं, उनके सहयोग से हम ये कोर्स आपको पढ़ाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कि यह कोर्स मैं कर सकता हूँ, किसके लिए है। तो हमारी तो सोच ये है कि कोई 3rd ईयर का कोई भी व्यक्ति है जो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, आपको वेबसाइट पे पूरी जानकारियां मिल जाएंगी। समय के इंटरेस्ट में मैं ज्यादा इस पे नहीं टाइम स्पेंड करूंगी, बट कोई भी मास्टर स्टूडेंट हो, 3rd ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट्स हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, NGO से जुड़े हुए हो, गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेंट्स हो, और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जिनको भी पब्लिक पॉलिसी में रुचि हो, वह इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह कोर्स कैसा है? यह कोर्स अभी तक जो जैसा हमने डिजाइन किया है, वो हमने सोचा है कि 4 महीने का कोर्स होगा। 4 महीने को हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 12 हफ्ते का जो आपको 12 हफ्ते आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको 6 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेगा 12 हफ्ते। 3 हफ्ते का प्रैक्टिकम है। प्रैक्टिकम का मतलब ये है कि आपको एक लाइव इश्यूज पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, और 1 हफ्ते का इन पर्सन मतलब फिजिकल रूप से हम आमने सामने एक हफ्ता हम स्पेंड करेंगे। और देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये जो पाठ्यक्रम है, ये बहुत सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस है, जिसका मतलब ये है कि वीकडेज में आपको वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, पठन सामग्री के माध्यम से आपको रेफरेंसेस दी जाएंगी, आपको खुद पढ़ना होगा। और वीकेंड पे जिस तरह से आज हम और आप बात कर रहे हैं,
इससे बेहतर तरीके से वीकेंड पे आपको फैकल्टीज बात कराएंगी। बेहतर तरीके इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, पर उस समय आपको यह सुविधा प्राप्त होगी, अवसर होगा कि आप समक्ष रूप से ऑनलाइन जूम के माध्यम से आप अपने फैकल्टीज के साथ जुड़ पाएंगे और डिस्कशन और डिस्कोर्स और ये काफी डिस्कशन और डिस्कोर्स फोकस्ड है। यह वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप फैकल्टीज के साथ डिबेट करें, डिस्कस करें और आप पढ़ाई कर पाएंगे। और काफी सारे वर्कशॉप्स इसमें हमारा इसमें डिजाइंड है। मैं पहले वर्कशॉप के बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग, ये मतलब एक अनूठी बात है इस प्रोग्राम के बारे में कि डिजाइन थिंकिंग लैब्स डिजाइंड हैं, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन लैब जिसमें ओपेड कैसे लिखते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखते हैं, इसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। फिर लीडरशिप एक ऐसा एक सॉफ्ट स्किल है जो आई थिंक हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एक बेहतर तरीके से नेतृत्व कर पाए। तो नेतृत्व विकास के लिए आपको लीडरशिप लैब्स होंगी और मानती हूं कि 4 महीने में आपको हम जॉब्स नहीं दिला पाएंगे, आपको प्लेसमेंट नहीं दिला पाएंगे, पर हमारी पूरी चेष्टा होगी कि आपको करियर डेवलपमेंट में हम मदद कर पाए। और इसके लिए सीवी राइटिंग वर्कशॉप, इंटरव्यू प्रिपरेशन, नेटवर्किंग, इतनी सारी आपको सोशल मीडियाज अवेलेबल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है। आप उसका सही उपयोग करके कैसे अपनी बात रख पाएं, कैसे आप लोगों से सोशल मीडिया द्वारा जुड़ पाए और करियर डेवलपमेंट कैसे कर पाए, ये सभी की आपको शिक्षा दी जाएगी। जब विषयों की बात करें तो हम 6 चीजों पे हमारा जोर रहेगा। एक तो अर्थशास्त्र और नीति की राजनीति, which means economics and politics of public policy। व्यवहार विज्ञान, जैसा मैंने आपको बताया, बिहेवियरल साइंस या बिहेवियरल चेंज। डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रस्तुति, मतलब डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो नीतियों के गठन में। मॉनिटरिंग एंड प्रभाव मूल्यांकन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डायमेंशन हो रहा है पब्लिक पॉलिसी का, जिसमें आप काफी करियर बना सकते हैं, खासकर हमारे जिनको इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जिनको प्रोसेस इवैल्यूएशन में इंटरेस्ट हो, इसकी भी आपको शिक्षा दी जाएगी। और एक करंट लॉज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, अभी रोहन जी ने हमसे शेयर किया कि कौन सी पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसी तरह कुछ जो करंट लॉज है, कुछ मुख्य पॉलिसीज है और उसके अराउंड क्या प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिस जानकारी के साथ आप चाहे तो अपने करियर को एडवांस कर सकते हैं, उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी चीजों को समझने के लिए, नीति डिजाइन समझने के लिए आपको आवश्यक है कि आप शासन और लोक प्रशासन की जो बेसिक्स है वो समझें, और इसकी भी शिक्षा आपको इस कोर्स के माध्यम से मिलेगी। बहुत लोग ने मुझसे पूछा है कि मैडम कौन पढ़ाएगा कोर्स, तो अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, पर यदि आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं तो आपको एक झलक मिल सकती है कि किस तरह के लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। और उनका हम काफी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि काफी उम्दा एक्सपर्ट्स जो है इंडिया के, वो हमारे साथ हमें इस कोर्स को डिजाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, और वो हमारे साथ जुड़ने के लिए वो अपनी सहमति प्रदान किए हैं। तो और मुझे आशा है कि आपके माध्यम से हम इसको और सुदृढ़ बनाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने कोर्स डिजाइन किया ये हमारी सोच है, पर अगर हम पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो सबसे बड़ी जो गलती आजकल पॉलिसी डिजाइन में हो रही है वो टॉप डाउन, क्योंकि हम जमीनी स्तर को नहीं समझते, हम स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो हम खुद ये गलती नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने वेबिनार के माध्यम से, और आज पार्थ हमारे साथ वापस जब जुड़ेंगे तो आपसे हम कुछ प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमारी ऐसी सोच है कि आपके पार्टिसिपेशन से, आपके सुझाव से इस कोर्स को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और तो यही है कोर्स के विषय में। काफी सवाल आ रहे हैं। एक गार्गी जी पूछ रही हैं कि फीस कितनी है। ज्ञानेश्वर जी, आपका भी यही सवाल है। तो
फीस के बारे में बताने के पहले बस कुछ मैं बात बताना चाहूंगी आपको कि देखिए, जब हमने ये कोर्स जब सोचा तो हम भी ढूंढने लगे कि भाई कौन सी किताब अवेलेबल है, कितने एक्सपर्ट्स हैं जो हिंदी या इंग्लिश दोनों बोलचाल की भाषा बता पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में, भारत में लोक नीति पर आपको अच्छी किताबें हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हमको काफी जो टेक्स्ट है उसका अनुवाद कराना पड़ रहा है। और इस कोर्स को डेवलप करने में काफी हमारा रिसोर्स लग रहा है, रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरीथिंग। पर हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि अगर हम लोग की भागीदारी चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इस कोर्स को कर पाए, तो हमें कॉस्ट को एक साइड रखते हुए हमें कोर्स फी हमें डिजाइन करना पड़ा। तो कोर्स का फीस है 1 लाख रुपए, बट चूंकि कोविड है तो इस साल हम 50% फेलोशिप देंगे प्रत्येक उम्मीदवार को जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जो ये कोर्स करेंगे। तो 1 लाख रुपए फीस है, पर आपको इस साल के लिए, चूंकि लॉन्च ईयर है और कोविड है, आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो चाहेंगे उसको एडमिशन मिल पाएगा। एडमिशन प्रोसेस भी एक रिगरस है, क्योंकि ये कोर्स एक कोर्स नाम मात्र नहीं है, यह एक कमिटमेंट है आपके प्रति। और ये कमिटमेंट है कि जब आप हमारे साथ 4 महीने जुड़े और यहाँ से जाएं, तो आप जब मुड़ के देखें तो बोल सके कि भाई मैंने एक इंडिया में ISPP द्वारा लोक नीति कार्यक्रम किया, और आपको आइडेंटिफाइबल स्किल्स हो आपकी उंगलियों पे जो आपको आगे आपके करियर ग्रोथ में हेल्प कर पाए। तो दूसरा सवाल है कि कोर्स इंग्लिश में होगा या हिंदी में। मैं बताना चाहूंगी कि कोर्स बोलचाल की भाषा में होगा। हमारा प्रयत्न होगा कि कोर्स को हम जितनी सरलता पूर्वक समझा पाए समझाएंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में क्यों नहीं, हिंदी में क्यों। देखिए, प्रॉब्लम पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन में यही रहा है कि आम जनता टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पा रही है। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट को हम सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से पढ़ाएंगे। कोर्स इंग्लिश में है, पर कुछ टेक्निकल टर्म्स है उसका हिंदी अनुवाद करना संभव भी नहीं है। तो उन टेक्निकल टर्म्स की आपको मतलब आपको ग्रोसरीज दी जाएगी, आप उसको आपको जो शिक्षक होंगे वो आपको समझाएंगे। तो सरलता पूर्वक बोलचाल की भाषा में आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो एक यही है। और कुछ सवाल है अगर कोर्स को लेकर के आप निसंकोच हमसे पूछिए। पारस जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी पारस जी, आप पूछना चाहते हैं? जी पूछा जाए। पारस जी, आप लिख के पूछना चाहेंगे या बोल के पूछना चाहेंगे? अच्छा, पारस जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। पार्थ, हम आपके पास वापस आते हैं। आपने काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया नीति इन कोर्स में क्या होने वाला है, हमारी मकसद क्या है, हमारा मोटिवेशन क्या है कोर्स के पीछे, राइट। और ये सब जानना सभी के लिए जरूरी भी है कि हम ये कोर्स क्यों करने जा रहे हैं, राइट। जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो एक बड़ा गोल रहा है ISPP का, और हमें अनुभव रहा है हमारा कि लैंग्वेज एक बैरियर बन चुकी है। हमें पसंद हो ना हो, लेकिन वो बैरियर तो है ही कि आज पब्लिक पॉलिसी का सब कुछ जो काम हो रहा है, जो चर्चा होती है, जो डिबेट होती है, राइट, जो पॉलिसी ड्राफ्ट बनते हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन होता है, वो सभी चीज़ें आज इंग्लिश में ही है। तो जिन लोगों को इंग्लिश में भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो सब आपने जो बताया कि more than 90% people are not really able to participate, right, because of the language barrier. तो वही बैरियर हम तोड़ना चाहते हैं, उसको भी हम हटाना चाहते हैं। और पहली बार तो हम हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि हिंदी थोड़ा हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहेगा तो उसके बाद हम शायद दूसरी भाषाओं के अंदर भी इस तरह कोर्स ऑफर कर सकते हैं, इफ नॉट इन ऑल लैंग्वेजेस बट एटलीस्ट इन 7-8 जो बड़ी बड़ी भाषा है हमारे देश की है, उसमें तो शायद जरूरी हम एक कोर्स ऑफर कर सकते हैं। तो हमारे मेन जो पर्पस रहा है वो यही है कि
ये लैंग्वेज बैरियर हम किस तरह से तोड़े और किस तरह से आम आदमी पब्लिक पॉलिसी के साथ जुड़े। एक सवाल है, एक अक्षय पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे पता चलेगा? अक्षय जी, हम आप विद इन दिस वीक, नेक्स्ट वीक तक एप्लीकेशंस खुल जाएंगे और आप सभी को मेल भी जाएगा। और आप मेरा अनुरोध है कि आप ISPP के ट्विटर हैंडल, लिंक्डइन पेज और वेबसाइट के साथ बने रहें। हम सोशल मीडिया पे तो अनाउंस करेंगे ही करेंगे, और वेबसाइट पे आप ispp.org.in, मैं कुछ क्षणों में लिख देती हूँ चैट बॉक्स में इसका एड्रेस, और आप वहां जाके आप एप्लीकेशन भर पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सरल भाषा में है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि आप भरेंगे और आपका चयन हो जाएगा। ये चूंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, मात्र 40 सीट्स हैं, तो आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इस सवाल के बुनियाद पे आपका चयन होगा। मुझे याद है कि एक पार्टिसिपेंट्स बड़ा कंप्लेन करी थी, वो शिक्षिका थी, बोली कि भाई आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पूछेंगी, हमें नहीं आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, बेसिक 10th का। पर देखिए, हम ये कोर्स नाम मात्र नहीं कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मेजरेबल स्किल्स हो। तो यदि आपके पास बेसिक भी अगर अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की ना हो या नंबर के प्रति फियर हो, तो आप इस कोर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस कोर्स में हमारा उद्देश्य बस सीट भरना नहीं है। इस कोर्स में है कि अच्छे लोगों का हम चयन कर पाए, उनको शिक्षा दे पाए, जो आगे जाके पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन में नेतृत्व कर पाए। तो इसीलिए आप जुड़े रहें वेबसाइट के साथ, और इस वीकेंड तक हम आशा करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। हमने 10 अक्टूबर पहले सोचा था, बट हमने थोड़ा अपना एप्लीकेशन बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे याद आया कि आज हमारा वेबिनार है और हम चाहते थे कि एक वेबिनार आपके साथ हो, उसके बाद एप्लीकेशन खोले, ताकि आप भी कोर्स को समझ पाएं और हम भी आपको समझ पाएं। जी पार्थ, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बता रहे थे कि एप्लीकेशन कब खोलेंगे, बता रहे हैं कि कुछ दिनों में एप्लीकेशन शुरुआत करेंगे, और कोर्स कब शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, ताकि उनको भी पता लगे जो ज्वाइन करने चाहते हैं कि कब से उनको भी टाइम निकालना पड़ेगा अपने करंट ऑक्यूपेशन जो उनका है, पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमारी मंशा थी कि 26 नवंबर एक बड़ा शुभ दिन है, बड़ा पाक दिन है इंडिया के लिए, क्योंकि वो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो चूंकि हम एक अच्छी सिटीजनरी का सीड्स डाल रहे थे, तो हम चाहते थे कि उस दिन हम ये कोर्स को शुरुआत करें, और 26 नवंबर को हम ये कोर्स लॉन्च करेंगे। पर मेरी फोन पे काफी बातचीत हो रही है, जैसे राहुल जी और बहुत सारे नाम मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में जो जुड़े हुए थे हमारे साथ पहले वेबिनार से, और उनका यही अनुरोध था कि मैडम, आप एक बार में फीस ले रही हैं, तो क्या आप कुछ मुझे समय दे सकती हैं कि मैं भी अपना कुछ मैं तैयारी कर पाऊं और कोर्स को मैं ज्वाइन कर सकूं। तो 26 नवंबर से हमारी एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि फॉर्मल क्लासेस में कुछ हफ्तों की डिले हो, मतलब डिले का शब्द का प्रयोग सही नहीं होगा, मतलब आपके अनुरोध पे हम फॉर्मल क्लासेस कुछ हफ्ते बाद शुरू करें, बट 26 नवंबर से हमारा एंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि कुछ चीजें बैकग्राउंड में क्या चल रही हैं, ये आपका जानना आवश्यक है। पहली बात, एक बड़ी उम्दा किताब है इन द सर्विस ऑफ रिपब्लिक। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई बुक पब्लिक पॉलिसी पे इस देश में आई है। तो उस पूरी बुक का हम ट्रांसलेशन, कुछ जो है रेलेवेंट का पोर्शंस का हम ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। एक किताब है नज, बड़ी फेमस किताब है, उसका हम कुछ उसका परमिशन ले रहे हैं पब्लिशर से ट्रांसलेशन करवाने के लिए। हम देख रहे हैं कि क्या रेफरेंस होगा जो आप लोकल अपने लोकलाइज क्षेत्र में, आप जैसे किसी ने एजुकेशन बोला तो उसमें क्या आप उसका उपयोग कर सकेंगे। चूंकि रिसोर्सेज इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, और वो फिर हम देख के आपके साथ हम जागती नहीं करना चाहते हैं कि हमने बोला भाई इंग्लिश कोर्स है और आपको हम अंग्रेजी में रिसोर्सेज दे रहे हैं। इसीलिए हम अधिकांश रिसोर्सेज का ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। इसमें हो सकता है कुछ और हमें भी समय चाहिए हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमें आपका भी सुझाव चाहिए, कि आपका अगर कोई सुझाव है जिससे हम कोर्स को और सुदृढ़ बना सकते हो, तो हम वो भी करना चाहेंगे। तो इसलिए भी इन दो कारणवश हो सकता है
कि फॉर्मल क्लासेस कुछ हफ्ते बाद शुरू हो, बट 26 को आपकी इंगेजमेंट हमारा शुरू हो जाएंगी। कुछ सवाल आ रहे हैं, एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए, जब हम डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं तो शिक्षा में कोई उम्र की सीमा नहीं होनी। जब हम भाषा की सीमा नहीं बांधना चाहते तो उम्र की सीमा कैसे रखें? तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। परंतु अक्षय जी ये मैं जरूर बोलूंगी कि आप देखिए कि आपको कितना लाभदायक हो सकता है कोर्स, उसका निर्णय आपको लेना होगा। इज इट अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम? यस, इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा यदि आप ये कोर्स सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हैं तो। पर हम आपको फिर चेतावनी दे देते हैं कि आप इसको ये मत समझिएगा कि आप रजिस्टर कर लें, क्लास ना करें और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं होगा। आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। इसमें ISPP ने काफी कमिटमेंट के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है और आपको भी इस कोर्स में कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। पार्थ, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? तो आपने भाई सही बात बताई नीति, और मैं भी उसको थोड़ा दोहराना चाहूँगा कि ये कोर्स को अगर आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे थोड़ा बता दूं कि जो 12 वीक का 6 कोर्सेज जो हम चलाएंगे, तो वीकेंड में उसके क्लास चलेंगे, राइट। मैं आपसे पूछूंगा कुछ समय में कि कितना घंटा आप दे सकते हैं वीकेंड के अंदर, लेकिन हमारा तो मानना ये था कि कम से कम आप 4 से 4.5 घंटा सैटरडे को और 4 साढ़े 4 घंटा संडे को देंगे, राइट। उस वक्त जो सिंक्रोनस, जैसे हम आज बैठे हुए जूम के ऊपर, उस तरह से फैकल्टी के साथ आपका चर्चा और सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगा। और उसके साथ साथ आपको वीकडेज में कुछ तैयारी भी करनी है वीकेंड क्लासेस के लिए, तो उसके लिए आपको वीडियो होगा आपके पास, पॉडकास्ट हो सकता है, कुछ रीडिंग मटेरियल जो हिंदी में है या इंग्लिश में भी हो थोड़ा, वो मिक्स भी हो सकता है। तो वो सब पढ़ना भी आपको है वीकडेज के अंदर, और उसके ऊपर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, वो उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसको कैसे समझना है डीप तरह से, वो सब काम होगा वीकेंड में सिंक्रोनस क्लास के अंदर, राइट। तो नहीं कि आपको एक चीज है कि इतना टाइम भी निकालना पड़ेगा आपको, राइट। और मैं आपसे थोड़ा पूछने भी जाऊंगा कि आपकी क्या राय है उसके बारे में। और जैसे नीति जी ने बताया कि हमारा ये मकसद नहीं है कि जो डेटा के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं वही उसमें आए। हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी काम नहीं किया है वो भी एक कोर्स में जुड़े। लेकिन एक बात जरूरी है कि आपको डेटा के साथ थोड़ी फैसिलिटी और कंफर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका कंफर्ट लेवल भी नहीं है डेटा के साथ, तो फिर जो 2 कोर्स हमारे बने हुए हैं वो काफ़ी डेटा हैवी कोर्सेज है, राइट। क्योंकि आज ज़रूरत है देश के अंदर कि हम समझे कि डेटा कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसे करना है, वो किस तरह से उसका उपयोग करना है, ताकि हम हमारी जो सरकारी स्कीम है, जो पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, उसको किस तरह से अच्छी तरह बना दिया जाए ताकि वो प्रॉब्लम हल कर पाए, और किस तरह उसको मॉनिटर करे, किस तरह से उसको फीडबैक ले और उसकी इंप्रूवमेंट बनाए नेक्स्ट स्टेज के अंदर। तो वो सभी के काम के लिए डेटा का काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, राइट। आई कैनॉट ओवर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन दिस प्रोसेस, राइट। सो जरूरी है आपको कि आपकी थोड़ा उसमें सरलता हो, थोड़ा कंफर्ट लेवल हो, थोड़ा होपफुली लाइकिंग भी हो उसके बारे में कि डेटा के साथ आप पसंद भी करते हैं उसमें चर्चा करने का और बातें करने का, राइट। तो बताऊंगा कि जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ जो नीतिन बताया कि क्या जरूरी है आपकी तरफ से इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू पार्थ। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इसमें हमने जो फैकल्टीज का भी जो चयन किया है बड़ा सोच समझ के किया है। कुछ फैकल्टीज हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है। एक हमारे जो फैकल्टी हैं एक कोर्स के लिए वो गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस तरह हमने उन फैकल्टीज को इनवाइट किया है और हम काफी सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि ऐसे फैकल्टीज जुड़े हैं जिनकी नीति में काफी एक्सपीरियंस रह चुकी है। पार्थ और मैं आपके सूत्रधार रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स। पार्थ जी और मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे टू इंश्योर कि आपकी जो लर्निंग हो रही है टुवर्ड्स ओरिएंटेड गोल हो रही है। तो इसमें ISPP का संपूर्ण कमिटमेंट है आपके प्रति कि आप कोर्स को भली भांति समझे, इसको सफलतापूर्वक करें। और मेरी ऐसी आशा है कि कल को जाके अगर
हिंदी क्षेत्र में अगर पब्लिक पॉलिसी में कोई लीडरशिप लेगा तो ये हमारा फाउंडेशन बैच लेगा। और कोई और अगर सवाल हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। So Niti ji, let me now move to some of the questions we want to ask, है ना? जी 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 जी। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। शायद आप लोगों ने ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर यूज भी किया होगा, मेंटीमीटर बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को। तो मैंने चैट बॉक्स में एक डाला हुआ है। आपको क्या करना है कि जाना है menti.com। आप लैपटॉप पे जा सकते हैं, अपने सेल फोन से भी जा सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। अब सिर्फ आपको सब टाइप करना है menti.com, आप वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके वो जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको वहाँ लिखना है। मैं स्क्रीन भी मेरा शेयर कर रहा हूँ ताकि वो आप देख पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है, जो हमने बात की कि कितने घंटे आप दिन में दे पाएंगे, वीकडेज में, राइट? सो ड्यूरिंग द वीक मीनिंग वर्किंग डेज, राइट, मंडे टू फ्राइडे जो है, तो हर दिन आप कितने घंटे दे पाएंगे। तो आप वहाँ जाएंगे menti.com और वो नंबर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है आपका आंसर क्या है। सो हाउ मेनी आवर्स ड्यूरिंग द 5 days, राइट, मंडे टू फ्राइडे आप दे पाएंगे। और दूसरा सवाल मैं पूछूंगा आपको इसके बाद कि कितना घंटे आप दे पाएंगे वीकेंड में। Niti, are you able to see the answers? यस यस। Okay. मेरा अनुरोध है कि सभी लोग प्लीज ये सर्वे लें। इससे हमें काफी एक दिशा मिलेगी कि हम इसको और कैसे स्ट्रॉन्ग, इसको और कैसे आपके लाभदायक बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो जो नहीं ले रहे हैं, काफी उनसे अनुरोध है कि प्लीज आप ये सर्वे लें। खाली आपको यही करना है, menti.com टाइप करना है और जैसे वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ा छोटा सा बॉक्स होगा जिसके अंदर आपको कोड डालना है 9131383। जैसे वो कोड डालेंगे उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वही खुलेगा आपके सामने, और उसमें से एक नंबर आपको चूज करना है कि वीकडेज में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे में आप कितना वक्त दे पाएंगे। ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोर्स भी इस तरह से डिज़ाइन हो, जैसे हम बात कर रहे थे पहले से कि आज पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल एक्सपर्ट की बन चुकी है, ऊपर से तय होती है, लोगों का उसमें कोई साथ नहीं होता है। तो उसी आइडिया को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं कि हम भी आपका साथ चाहते हैं, आपसे जुड़ना, आप भी, हम आपसे चाहते हैं कि आप भी जुड़े उस डिज़ाइन के अंदर, ताकि जो कोर्स हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ ज्ञान है, कुछ अनुभव भी है, कुछ एक्सपर्टीज भी हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि किस तरह से आपकी जो नीड है, आपकी जो सोच है, वो किस तरह से दोनों को मिलाए और एक बड़ा अच्छा कोर्स कर सके ताकि हमें भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। ठीक है, आई थिंक शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जी जी। तो दूसरा सवाल ये है कि टोटल वीकेंड में, सैटरडे संडे में समझता हूँ कि शायद आप सभी के लिए ऑफ होगा, जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी ऑफ होगा और जो कॉलेज में उनके लिए शायद वही ऑफ ही होगा। तो वो नॉन वर्किंग डे जो है सैटरडे संडे, उसमें आप कितने घंटे दे पाएंगे? तो टोटल सैटरडे और संडे को दोनों को मिलाकर कितने घंटे आप दे पाएंगे कोर्स के लिए? और एक कोर्स आप जानते हैं अभी तो हमने तय किया है 4 महीने का, तो इसका सोच सकते हैं उस तरफ से आप कि 4 महीना आपको देना है, इतने घंटे आपको वीकेंड में देना होगा। तो ये दोनों दिन को मिला करके है कि आप सैटरडे संडे टुगेदर आप कितने घंटे दे पाएंगे। और फिर से आपको वही menti.com, अब तो वहीं पर ही है अभी, तो खाली आपको कोड ही डालना है, जो नया कोड यहाँ दिखा रहा है वो कोड आप डालेंगे तो ये स्लाइड आपके सामने खुल जाएगी।
शायद खुल रही कि नहीं खुल रही है, आई डोंट सी एनी आंसर। यदि आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें या हमें Q&A में लेके पूछें प्लीज। योगेश जी पूछ रहे हैं कोड क्या है? वो 9 जो ऊपर लिखा हुआ 9131383। और अर्पित जी बोल रहे हैं says please wait for the presenter to show the next slide। तो दिखाई रहा है नेक्स्ट स्लाइड तो आपको दिख रहा है। साइट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली विनय जी बोल रहे हैं। एक बार हम दोबारा कोशिश करते हैं। Maybe I think it requires it to be refreshed. Could be। अब दिखाई रही है? अब कोशिश करें आप। अच्छा, एक बार फिर से कोशिश करें और बताएं। अविनाश जी बोल रहे हैं कि वोट किया है पर शायद वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। Wait for the presenter to show the next slide। अभी वही दिखा रहा है? हाँ, अभी तक वही आंसर आ रहा है जैसा अक्षय जी बता रहे हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। जी जी। अब देखा जाए, अब कोशिश की जाए। Maybe if not working, then we can just collect answers in the तो chat. आप चैट बॉक्स में यदि आप डाल पाए तो। हाँ, आप देख तो रहे कि ऑप्शन है 4 घंटा, 5 घंटा, 4 से 12 घंटे तक का, सैटरडे संडे दोनों को मिलाकर आप कितना वक्त दे पाएंगे। अगर आप मेंटी पे नहीं कर सकते हैं तो फिर चैट में अपना नंबर लिख दीजिए और वो साथ जल्दी भी हो जाएगा। जी, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल लिखिएगा जितना आप दे पाएंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत अनुभव, हमें आपका अनुभव जानना बहुत जरूरी है कि आप कितना घंटा दे पाएंगे और कुल सैटरडे और संडे मिला करके। अभी भी बहुत लोगों ने नहीं बताया। अच्छा, चैट बॉक्स में प्लीज आप मैसेज। maybe I can just run the questions. जी जी जी, और चैट बॉक्स में वो आंसर कर हाँ हाँ, जिसको जो जवाब दे रहा है वो उसका फायदा हम उठाएंगे। जी जी कुछ लोगों के साथ हम फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो एक तो आपसे यहाँ जानना प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग आपसे कि आपकी क्या राय है उसके बारे में, और साथ साथ हम लोग कुछ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को मिलकर उनके साथ भी काफ़ी डिटेल में चर्चा भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी उसमें जुड़ना है वो फोकस ग्रुप डिस्कशन में, तो आप जरूर बताएं ईमेल के ऊपर, तो हम आपको भी कांटेक्ट करेंगे और उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो तीसरा सवाल हमारा ये है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना चाहिए। आपको पता है कि कितना घंटा का काम होगा, राइट, कितने कोर्स करने हैं। तो हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने का माना हुआ है कोर्स, वो लंबा होना चाहिए 5 महीने का और 6 महीने का, तो आपकी क्या राय उसके ऊपर है। तो आप लिख सकते हैं चैट के अंदर 4, 5 और 6, जो नंबर आपको सही लग रहा है। और ये आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज को कंप्लीट करने का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी पुअर है। ज़्यादातर 5% ज़्यादा कम लोग वो ऑनलाइन, दिस इज अ फुली ऑनलाइन कोर्स। हमारा तो फुली ऑनलाइन कोर्स नहीं है, हमारा तो ब्लेंडेड कोर्स है जहाँ हम आमने सामने भी मिलेंगे और सिंक्रोनस क्लासेस भी होंगे। लेकिन काफ़ी लोग उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। सो उनका मोटिवेशन किस तरह से बनना चाहिए, हम क्या करें ताकि आप भी मोटिवेटेड रहे उस कोर्स को ख़त्म करने के लिए और एंगेज रहे उसके साथ। तो हम सोच रहे थे कि आपसे पूछे कि व्हाट वुड बी मोटिवेटिंग फॉर यू
आपको किस तरह से हम चलाए, क्या करें कोर्स के अंदर, ताकि आपका उत्साह बना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कीप यू मोटिवेटेड टू कंप्लीट द कोर्स? आपको क्या किया, आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन इस कोर्स कंप्लीट करने के लिए किस चीज से मिलेगा? I'll stop sharing the screen. मतलब लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को समझ में ना पाया हो, तो मैं उदाहरण के रूप में देना चाहूंगी कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि एक्टिव इंटरेक्शंस हो, डिस्कशंस हो, या आपको ये लगता है कि आपको कुछ राइटिंग का टाइम मिले, अगर आपको स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कशन का टाइम मिले, ना किस चीज से आपको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है इसका। So practical activities और group discussion बता रहे हैं, peer learning। तो कोई बता रहे हैं राजेंद्र जी की फील्ड वर्क भी होना चाहिए। जी। अच्छा, आफ्टर द कोर्स कोई अच्छी जॉब भी मिलेगी, वो भी एक मोटिवेशन है। सही बात है कि अगर अच्छी जॉब मिलती है कोर्स खत्म करने के बाद, तो वो भी एक बड़ा मोटिवेशन रहेगा। अच्छा, विवेक जी बता रहा है कि डिजाइन थिंकिंग लैब की जो आपने बात की और राइटिंग और कम्युनिकेशन लैब की जो बात की, वो भी उनके लिए काफी सही है। जैसे ये बताया कि हम दोनों सूत्रधार रहेंगे कोर्स के अंदर, ताकि हम पूरे ड्यूरेशन के कोर्स के जुड़े रहेंगे आपके साथ। और हम जैसे हमने मेन कोर्स में किया हुआ है आईएसपीपी के अंदर भी ऑल्सो हैव लर्निंग एसोसिएट्स, बोलते हैं एलए, लर्निंग एसोसिएट, जो भी साथ हर कोर्स के लिए रहेंगे, जो आपसे मदद करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे अगर फैकल्टी जवाब नहीं दे पा रही है, तो वो भी आपको आपके साथ रिव्यू भी कर सकते हैं कोर्स मटेरियल का। तो वो सब करने के लिए हमारे पास हर कोर्स के लिए एक लर्निंग एसोसिएट होगा, जो आपसे भी जुड़े रहेंगे वो पूरे ड्यूरेशन के कोर्स के। तो बता दूं मैं कि हमारी भी यही चेष्टा है कि हम इसको जितना पर्सनलाइज्ड कर पाए, इस लर्निंग को, उतना हम कोशिश करेंगे। तो काफी तरीके से आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा। एक तो क्लास में फैकल्टी रहेंगी ही रहेंगी, क्लास के बाहर अगर आप पूछना चाहते हैं तो लर्निंग एसोसिएट होंगे। लर्निंग एसोसिएट के माध्यम से आप अपने प्रश्न फैकल्टी तक पहुंचा सकते हैं, उनसे भी अनुरोध कर सकते हैं अगर कुछ और ग्रुप डिस्कशन चाहिए तो। फिर पार्थ जी और मैं आपके साथ थ्रू बने रहेंगे और देखेंगे कि भाई आपकी दिलचस्पी क्या हो रही है। यदि हम उसमें कुछ आपकी मदद कर पाए, अगर आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, तो उसको हम उसमें क्या हम रोल अदा कर सकते हैं कि आप उसको परस्यू करें। तो आपका जो संबंध होगा बस 4 महीने तक सीमित नहीं होगा, और 4 महीने में भी जितने घंटा बता रहे उतना सीमित नहीं होगा। हाँ, जहां तक मुझे लगता है कि ये संबंध काफी लंबा चलता जाएगा, क्योंकि हमारी एक कॉमन रुचि है लोक नीति में। तो आपका मेरा संबंध लंबा चलता जाएगा, और हमारी यही चेष्टा होगी कि हम आपको जितना पर्सनलाइज दे पाए अटेंशन उतना देंगे। अब ये कहना तो संभव नहीं होगा कि आप चाहें तो कभी भी फोन कर पाए, मतलब एक, पर हाँ हम समय बांध देंगे कि आप इस समय बात कीजिए, आप यहाँ क्वेरीज ड्रॉप कीजिए। और पार्थ में हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक हफ्ते आपसे फीडबैक लें, आपसे लर्निंग शेयर करें। तो हाँ रचना जी, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप कोर्स में आएंगी तो आपने बहुत अच्छा नेतृत्व कर पाएंगी इसका।
उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। इनफैक्ट इस कोर्स में हम जैसा सोच रहे हैं कि हम भी ग्रुप असाइनमेंट्स देंगे आपको, हम अलग अलग ग्रुप्स में ऑनलाइन के माध्यम से ही ऑनलाइन कैफे के माध्यम से आपको एक कॉमन प्रॉब्लम देंगे वर्क करने के लिए। सो हमारी भी यही सोच है। पर आज बहुत ही प्रसन्नता हुई देख के कि आप इतना एक्टिवली आप जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। पार्थ, समय समाप्त हो चुका है और मैं नहीं चाहूंगी कि शनिवार की शाम हम आपको ज्यादा रोके, पर जैसा दो बस चीज है जो मैं रिपीट करना चाहूंगी। एक तो यह है कि हम एक फोकस ग्रुप डिस्कशन भी करने जा रहे हैं और हम ऑलरेडी मैं संपर्क में हूँ कुछ लोगों के। यदि आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज lokniti@ispp.org.in जिस ईमेल से आपको हमारा मेल जाता है, इसके लिए इनविटेशन जाता है इस वेबिनार्स के लिए, आप उस पर जवाब दे करके प्लीज अपने इंटरेस्ट आप शो कर सकते हैं और हम आपको इनवाइट करेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए। और इस कोर्स को लेके कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए, आप निसंकोच लिखें और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी हम आपसे संपर्क में आके आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। और जैसा कि मैंने बताया, एडमिशन ये आने वाला जो वीक है उसमें खुल जाएगा। हमारी आशा है कि वेडनेसडे तक आपको फॉर्म लाइव हो सकता है, उससे पहले भी लाइव हो सकता है। इन एनी विच केस हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आपको पता चल जाएगा कि एडमिशन खुल गया है, वेबसाइट पे पता चल जाएगा। और हम भी आप सभी को जैसे वेबिनार का ईमेल भेजते हैं वैसे ईमेल भेज के आपको बताएंगे, आपको जानकारी देंगे कि एडमिशन खुल गया है। जाते जाते डॉक्टर पार्थ जे शाह जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे श्रोताओं को। यही कि आप देखते हैं कि काफी कुछ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो चुकी है ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। जो अभी मैंने ट्राई करा था मेंटीमीटर का यूज करने का, और काफी कुछ ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो हमारी एंगेजमेंट काफी डीप ले जा सकती है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो हम नहीं कर पाते फेस टू फेस, राइट, वो हम आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। तो आज पहले जो मुझे भी डर था कि अगर ऑनलाइन जाएंगे तो कितना पढ़ पाएंगे, कितना एंगेजमेंट रहेगा, कितना वो मोनोटोनस हो जाएगा, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज नहीं कि जस्ट वेबिनार और सेमिनार के अंदर, लेकिन क्लासरूम के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आई है, नए नए इक्विपमेंट आ चुके हैं, ताकि हमारी एंगेजमेंट बिल्कुल पर्सनलाइज रहे। कभी कभी तो लगता है कि इट इज मोर पर्सनलाइज्ड on Zoom than in person, because you can see each one very clearly on the screen, right? So I think important रहेगा कि हम सब साथ में, I'm very much look forward to working with you, having you in the program, and we can create this unique program ICP की एक्सपर्टीज के साथ साथ मिलकर। और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर जो देश की जो हमारी एक एम्बिशन है, जो हमारी भावना है देश के लिए, उसको हम सॉल्व कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी, आपके शब्दों का, आपके समय का। और मेरा स्पेशल धन्यवाद है हमारे सभी श्रोताओं का जो आज आए हमारे साथ जुड़े। और देखिए 1 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और आप कोर्स में आइए, आपका 4 महीना कैसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और इतने हम एक दूसरे के साथ सीख के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जो सौरभ चंद्रा जी ने लिखा हुआ है वो कहोती में प्रोफेसर है। जी जी, ठीक है, थैंक यू।